So hello everyone. In this particular lecture, we will discuss about the lecture number 28 and 29. Both are related to the topic transmission of power. Okay, the transmission of power means this is the mechanical power. So we will discuss about that, and we have already done the topic related to the numerical problem of power transmission. Okay, and I have already told you that to note down all the formulas uh, coming in this complete topics. ठीक है, तो मैंने सारी फार्मूला बोले थे आपको लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ। जैसे पहला फार्मूला आपका पावर का 2π/nt/60 इक्वल्स टू, आप 2πn/60 को ओमेगा भी लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट विल बिकम टी ओमेगा। एंड पावर का ही फार्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में है, फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। और फोर्स आपको पता है इक्विवेलेंट फोर्स कितना होगा, टेंशन का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट आपको पता ही है, अगर स्लिपिंग नहीं है तो R1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू R2 इंटू ओमेगा 2 होगा। एंड देन ऑफ कोर्स वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो, दोनों सेम नाम है, और ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट का स्पीड। एंड आउटपुट पे हमेशा ड्रिवन होगा और इनपुट पे हमेशा ड्राइवर होगा, तो इन दोनों का स्पीड का भी रेशियो वही बोला जाएगा। लेकिन स्पीड और डायमीटर में जो रेसिप्रोकल का फार्मूला होता है, रेशियो रिलेशन होता है, उससे हमको पता चलता है कि ड्रिवन की स्पीड इक्वल्स टू ड्राइवर का डायमीटर डिवाइडेड बाय ड्रिवन का डायमीटर, and it is also in the terms of angular velocity, so they both will be same. Okay, and then the speed ratio for the with a slipping condition, that will be equals to n output upon n input equals to diameter at input upon diameter at output multiplied by 1 minus S100. This is the slipping term, and second slipping term, because there is a power transmitted between two drives, so 1 minus S2 upon 100. Okay, and next is the for the gear type of system, gear power transmission. So module is there, and module is denoted by M, and the unit of the module is mm. Okay, and it is equals to diameter upon time. No, this is not time. Okay, it is number of teeth. And to get rid of the confusion, so I have given the notation as a z for the number of teeth and d upon z. The diameter will be taken as only in the mm. Okay, so the unit will be mm. And then the length of the belt, there are four formula for the length of the belt: L exact for the open, L approximate for the open, and L exact and L approximate for the cross belt drive also. So there are four formulas, so I am including all of them in the formula number 4. So there is a next formula that is very important: T1 upon T2 equals to e to the power mu theta. Theta should be taken in radian. If belt drive is flat, then the formula is e raised to the power mu theta. But if the belt drives are the rope drives or V belt, so the formula will be different, and it is equals to mu theta e raised to the power mu theta upon sine beta. Sine beta is the semi groove angle. Groove has been made on the pulley, and the complete angle is known as the 2 beta, and that is known as a groove angle. So the half of that 2 beta is beta, and it is equals to semi groove angle. Okay, and it is in the case of the rope drive, or we can say circular drive, and second is V belt drive. Next is the power formula, that is for the belt drive, the T1 minus T2 into velocity of the belt. Okay, and then obviously the VB equals to R1 omega 1, and VB is also equals to R2 omega 2. Okay, and then the centrifugal tension formula is the mVB square. M should be taken in the kg per meter, the mass per unit length. Okay, if the mass is 10 kg and the length is 2 meter, then the M will be 5. Okay, per meter mass is only 5. Okay, the 5 kg per meter. So you have to take care about the units, whatever they given in the question, that mass is only mass is given, means in the terms of kg. So you have to find out the length of the belt, and then you have to divide by that particular length into the mass, so that you can get the mass per unit length.
Okay, and then the obviously if VB is greater than 8 meter per second, some books mention that it is 10 meter per second. So if it is greater than 8 meter per second or 10 meter per second, then the centrifugal tension will be considered. Okay, it will not be equals to 0, and then the tension formula will be changed. That is T1 plus TC upon T2 plus TC, and that equal to e raised to power mu theta. And T1 plus TC can be written as T1 and T2, and you know that T1 plus TC plus and T2 equals to T2 plus TC, and this T1 is also known as the T1 max. Okay, the maximum tension generated inside the belt material, and that T1 should be equals to sigma into Bt. Sigma is the strength of the belt and equals to the strength multiplied by the area of the cross section of the belt, and the area of the cross section of the belt is the thickness is the T and the width is the B. Okay, so this is the related to the maximum tension can be applied on the belt material. Next is the 10th formula. The condition for the maximum power condition is the T1 max equals to T1 and T1 plus TC equals to 3TC. The maximum tension it should be equals to T1 plus TC, and that equals to 3TC. So T1 will be 2TC. This is the condition. These are the condition. T1 equals to 3TC equals to T1 equals to 2TC, because this TC will be coming out to the right side, and then one TC will be cancelled out, and T1 equals to 2TC, and TC we know that mVb square. So 2 mVb square equals to T1 is the condition for the maximum power. Okay, next is last the initial tension formula, that is T1 plus T2 plus 2TC upon 2, that we have already discussed that if the TC is equals to 0 means Vb is less than 8 meter per second, so the TC will be 0. The formula will become T1 plus T2 by 2. Now coming to the question. Okay, very easy question, but it is some up to some level it is a bit lengthy. Okay, so you have to write down first of all numerical. Whenever you are going to attempt a numerical problem, then you have to write the given data, and on the basis of the given data you have to inculcate yourself that what kind of formula is going to be used, and for the unknown values what type of or how many equations are required. Okay, so 2 kilowatt power means power is given datas. I'm going to write it directly. Given datas, power equals to 2 kilowatt means 2000 watt, and it is open belt drive. The linear velocity of the belt is 2 meter per second, means Vb equals to 2 meter per second, and it is less than 8 meter per second, so there will not be any consideration of centrifugal tension. The angle of lob, जब भी आपको angle of lob या कुछ भी angle दिया हो तो आप उसको मान ही लेंगे angle of contact है, and it is equals to 160 degree. 160 degree is the angle of lob in the degree, so you have to determine it into the radian. So it will be in the radian it will be 8 by 9 pi. I have already calculated, so I am writing it directly in radian, 8 by 9 pi. The coefficient of friction is also given, the mu equals to 0.25. Then determine the effect on the power transmission. कब इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिशन मतलब पावर चेंज हो रहा है या पावर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो हमको चेक करना है. कब करना है चेक? इन सारे केसेस में. ये सारे केसेस देखिएगा. इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इंक्रीज बाय 8%. ठीक है. सो इनिशियल टेंशन ये आपको पता है पहले से ही कि फार्मूला क्या है. इनिशियल टेंशन का फार्मूला क्या है? टी नॉट इक्वल्स टू T1 प्लस T2 बाई 2. TC क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज लेस देन 8 मीटर पर सेकेंड. सो T1 प्लस T2 बाई 2. अब इनिशियल टेंशन तो पहले निकल जाए, उसके बाद हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे इसको, लेकिन T1 और T2 नहीं पता है तो हमको T0 भी नहीं निकल पाएगा. तो आपको देखना होगा कि T1 और T2 दो अननोन है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए एटलीस्ट टू फाइंड आउट T1 एंड T2. तो अभी एक भी इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन देखिएगा, जब भी म्यू और थीटा गिवन हो तो सबसे पहले आपको फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए टेंशन रेशियो का. सो डिटरमाइन कर लेते हैं पहले ही टेंशन रेशियो का फार्मूले से एक इक्वेशन बना लेते हैं. तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर म्यू थीटा. ठीक है. अब म्यू गिवन है
तो T1 निकल जाएगा, T1 इक्वल्स टू T2 मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू द पावर म्यू, म्यू इज़ 0.25 एंड थीटा इज़ द 8/9 पाई। देखिएगा इसको राउंड ऑफ नहीं करना है आपको, जो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है फ्रैक्शन में वही यूज़ करना है कैलकुलेटर से। और आप देखेंगे इसकी वैल्यू जब आएगी तो आप निकाल लेंगे कि ये आएगी T2 इंटू 2, ठीक है। सो T1 की वैल्यू T2 से डबल है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा आपके पास, पावर गिवन है तो पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, इट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। पावर इज गिवन, इट इज 2000 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज 2, ओके। सो वी कैन गेट दैट T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1000, इक्वेशन नंबर 2। बस अब ये इक्वेशन आ चुका है, इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 से वैल्यू इसमें रख दो तो आ जाएगा 2T2 माइनस T2 इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ से आ जाएगा T2 इक्वल्स टू 1000, और आपको पता है कि T1 कितना है, T1 है T2 का डबल। सो T1 आ जाएगा 2 इंटू 1000 दैट इज़ 2000। अब हमको ये पता चल गया कि इनिशियल टेंशन पहले कितना था, T1 प्लस T2 बाई 2, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1000, 2000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। ये आ गया हमारा 200, सॉरी T0 इक्वल्स टू 1500 न्यूटन, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम केस 1 लगाएंगे। अब केस 1 क्या है, केस 1 है, इस केस में क्या करना है, T0 इंक्रीज हो गया, T0 इंक्रीज हो गया मतलब T0 बन गया डैश, और ये कितना हो गया है, T0 से 8% ज़्यादा है, T0 प्लस 8% ऑफ T0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू T0 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 0.08 आएगा एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1.08 इंटू T0 एंड ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। T0 आ चुका है हमारे पास 1.08 इंटू T0 इज 1500, सो ये आ जाएगा 1620 न्यूटन, T0 डैश आ गया, ठीक है। अभी लेकिन इससे क्या हो गया, हमको T0 बस बदल गया, इंक्रीज हो गया, इससे हमारा पावर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, अब T0 जब आपने बदल दिया तो क्या बदल जाएगा, T0 डैश इक्वल्स टू, आपको पता है फार्मूला है T1 प्लस T2 बाई 2। अब देखो T1 प्लस T2 जब था तो T0 डैश नहीं था, तब था T0, लेकिन जब T0 डैश हो गया तो इसका मतलब टेंशन बदल जाएंगे, T1 प्लस T2 डैश बाई 2 हो जाएंगे। अब ये दोनों निकालने पड़ेंगे क्योंकि अब पावर बदल जाएगा, पावर विल बी T1 डैश माइनस T2 डैश मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। पावर बदल जाएगा तो आपको T1 डैश और T2 डैश निकालने पड़ेंगे अब फिर से, ठीक है। सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन T1 डैश और T2 डैश के लिए कि P डैश कितना हो गया, ठीक है। तो निकालें, तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है, देखिए पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन नहीं, ऐसे नहीं देखना हमको देखना है कि P जब P डैश हो गया है तो T1 डैश और T2 डैश कितने आएंगे, कितना आएगा। अब देखो T0 डैश आ चुका है तो 1620, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 और ये होगा इक्वेशन नंबर 4, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू यूज द टेंशन रेशियो फार्मूला दैट विल बी T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर म्यू थीटा, और इसकी वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, देखिए ऊपर कहाँ निकाले हैं, ये पूरी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट किया था और इसकी वैल्यू आई है 2, ठीक है, ये 2 आ गई है, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, मतलब टेंशन रेशियो अभी भी उतना ही रहेगा, 2 के बराबर ही रहेगा, बट T1 और डैश और T2 डैश की वैल्यू बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा T2 डैश मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 3 और 5 को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। T0 डैश कितना है 1620, मतलब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1620 इक्वल्स टू T1 डैश प्लस T2 डैश
अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, T1 डैश प्लस T2 डैश इक्वल्स टू 0 4 2 3 3 2 4 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 5 और 3 को अगर सॉल्व करें, 5 और 3 को सॉल्व करें, मतलब T1 डैश को इसमें रख दें, इसमें रख दें नीचे वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ जाएगा 3 2 2 T2 डैश इक्वल्स टू 4 0 एंड T2 डैश विल बी 3 2 4 0 अपॉन 3। देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, 3 1 जा 3, 3 8 जा 1080, okay, so T2 dash is 1080 Newton, so T1 dash is double of T2 dash, so it will be equals to 2160 Newton, okay, okay. Okay, then T1 dash has been comes out to be 2160. So now I am going to write power dash, P dash. P dash is T1 dash minus T2 dash into velocity of the belt is 2 from equation 4. Equation 4, देखिए equation 4 हमने लिखा था पावर डैश, ठीक है। तो इसमें हमारे पास P डैश आ जाएगा, P डैश इक्वल्स टू 2160 माइनस 1080 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1080 इंटू 2160 आ जाएगा वाट, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन पावर, परसेंटेज चेंज इन पावर। अब देखो परसेंटेज, जब भी किसी चीज़ का चेंज निकालना हो या परसेंटेज चेंज निकालना हो, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन पावर। तो पावर का फाइनल क्या था, P डैश, इनिशियल कितना है P, इनिशियल कितना है P मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ गया है 2160 मल्टी माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, और आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे आप ये होता है 8%। इसका मतलब जब आप इनिशियल टेंशन को इंक्रीज़ किया 8% से, तो पावर कितना इंक्रीज हो गया 8% से, ये कंक्लूजन है, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले केस का तो क्वेश्चन कर लिया हमने, यहाँ पे पावर कितना हो गया इंक्रीज 8%। देखिए अब इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज डिक्रीज बाई 8%, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पावर क्या हो जाएगा 8% डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ लॉप इज इंक्रीज बाई 8%, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एन आइडल्स पुलीज, ओके, आइडल्स पुलीज। तो फॉर द सेम स्पीड, देखिए अब ये उसमें और भी कुछ दिया हुआ है, सेम स्पीड मतलब वे भी चेंज नहीं वाला है, एंड द टेंशन ऑन द टाइट साइड इज चेंज बिकॉज इट इज आल्सो सेम, और इसमें न्यू चेंज कर रहा है, बट इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। क्या मिसिंग है, ये जो लाइन लिखा हुआ था फॉर द सेम स्पीड एंड द टेंशन ऑन द टाइट साइड, ये लाइन जो है इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो इसको भी कर लेंगे आप, थर्ड करते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो थर्ड केस में क्या बोला जा रहा है, थीटा चेंज हो जा रहा है, थीटा डैश हो जाएगा, और कितना इंक्रीज हो रहा है ये मैंने देखा था अभी 8%, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या चेंज होगा, और क्या की चीज़ चेंज नहीं हो रही है, T1 डैश कितना हो जा रहा है T1 के बराबर ही चेंज नहीं हो रहा है, बस T2 कितना हो जा रहा है, T2 चेंज हो जा रहा है T2 डैश में, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज नॉट आल्सो गोइंग टू बी चेंज एंड इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसकी वैल्यू निकालनी होगी हमको, ठीक है, ताकि हम पावर निकाल सकें, ठीक। तो हमें पावर क्या हो जाएगा, पावर डैश हो जाएगा T1 डैश माइनस T2 डैश मल्टीप्लाई बाय बेल्ट वेलोसिटी, बट T1 डैश चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कितना रहेगा T1 माइनस T2 डैश मल्टीप्लाई बाय बेल्ट वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लें, चलो 1 नहीं मानते क्योंकि हमको पीछे वाली वैल्यूज़ भी यूज़ करनी है। तो इक्वेशन लास्ट वाली कितनी थी
5, तो इसको ले लेते हैं हम लोग 6 इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो पावर डैश कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें रख देंगे बाद में हम लोग, बट एक T2 डैश निकालना हमें आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको ये फार्मूले में T2 डैश नहीं पता है, सिर्फ T2 डैश नहीं पता है। T1 हमको पता है क्योंकि हम निकाल चुके हैं T1 कितना है पिछले क्वेश्चन से 2000, ये हमारे पास कितना है 2000। वेलोसिटी ऑफ द बेड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड T2 डैश निकालना है। ये देखिए अब कैसे निकलेगा, ये आपके पास एक ही इक्वेशन है जिसमें थीटा डैश हो जाएगा और T1/T2 डैश हो जाएगा। इक्वेशन है T1/T2 डैश इक्वल्स टू e⁻μ थीटा डैश, ठीक है। इसकी वजह इस थीटा डैश की वजह से ही तो ये T2 डैश हो गया है, अदरवाइज ये T2 ही रहता, ठीक है। तो थीटा डैश पहले निकालना है। थीटा डैश इज इंक्रीमेंट ऑफ थीटा बाई 8%, तो थीटा इंटू 8%, 8% मतलब 8/100, ठीक है। और थीटा हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो थीटा बाहर आ जाएगा +1 + 8/100, ठीक है। थीटा कितना था 8/9 पाई मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 108/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 24/25 पाई, ठीक है। ये हो गया थीटा डैश, ये हो गया थीटा डैश। अब आप इस इक्वेशन में रख देंगे, कौन सा इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन नंबर 7 में फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या आएगा T1/T2 डैश इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर म्यू इज 0.25 जैसा पहले था, मल्टीप्लाई बाई 24/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इक्वल्स टू, देखें इसको सॉल्व करके, इट इज़ लाइक 0.25 इंटू 24 इंटू पाई divided by 25 and exponential to the power answer it is 2.1254। जो भी वैल्यू आई है मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ, बट यूज़ करूँगा मैं जो कैल्सी में मेरी जो वैल्यू आई है, यूज़ में इसको करूँगा और मल्टीप्लाई बाई T2 डैश, ठीक है। अब मैं T1 हमको पता है कितना है 2000, ये 2000 आया था। अब 2000 में डिवाइड करूँगा मैं उससे वैल्यू जो हमारी कैलकुलेटर में आई थी, जो T2 डैश से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से आ जाएगा हमारा T2 डैश 940.978। अब अगर अभी फिर से अभी भी मैं इसको डायरेक्टली बस लिख रहा हूँ, बट यूज़ में करूँगा कैलकुलेटर वाला। अब हमें निकालना है P डैश। P डैश देखिए कौन से इक्वेशन में था, इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 P डैश इज T1 - T2 डैश मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। सो T1 इज 2000 माइनस, अब जो मेरे आंसर आया था 940, बट जो कैलकुलेटर में कुछ और है, राउंडेड ऑफ नहीं है, तो मैं वही यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। सो 2000 माइनस जो मेरा कैलकुलेटर में आया था T2 डैश मल्टीप्लाई बाई 2, एंड दिस विल बिकम 2118.043 P डैश, ठीक है, वॉट। अब परसेंटेज चेंज फिर से निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन पावर, परसेंटेज चेंज इन पावर, एंड इट इज इक्वल्स टू P डैश माइनस P/P मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए कितना आता है ये, P डैश कितना है, P डैश है जो वैल्यू मेरी कैलकुलेटर में आ चुकी है 2118.043, और आगे भी बहुत कुछ है तो उसको मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो मैं बस डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। सो माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, and it is coming out 5.902%, okay। So percentage change in power because of change of angle of contact by 8%। So पावर में कितना चेंज आया है 5.902%, ठीक है। अब देखो जो केस 4 है उसमें क्या चेंज किया जा रहा है, म्यू चेंज किया जा रहा है, म्यू को म्यू डैश किया जा रहा है, म्यू डैश कितना % से किया जा रहा है 8% से, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन होगा T1/T2 डैश हो जाएगा, T1/T2 डैश हो जाएगा,
टी रेस्ट पावर म्यू डैश थीटा हो जाएगा। थीटा वही चेंज अब नहीं होगा, अब सिर्फ चेंज होगा म्यू डैश। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप टी टू डैश निकाल लोगे और फिर से पावर डैश वाले फॉर्मूले में रख दोगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगा टी टू डैश का। देन यू कैन गेट द पावर, चेंज द पावर, and then percentage change in power you can also calculate. Okay, so now I'm going to solve the problem in lecture number 29. So thank you.